Hello guys, this is Sahil Utekar. I'm your physics teacher and today we are going to see a new chapter, gravitation. Guys, in gravitation we have to cover following topics. First we have to cover Newton's law of gravitation, then acceleration due to gravity, then variation in g with respect to four parameters. Those parameters are variation in g with respect to height or altitude, variation in g with respect to depth, variation in g with respect to latitude, and variation in g because of the shape of the earth. Then we have to also cover gravitational field strength, or you can call it as gravitational intensity, gravitational potential energy, Kepler's laws for planetary motion, motion of satellites, weightlessness in case of a satellite, all these topics. So today we are going to start first topic, that is Newton's law of gravitation. So let's start. Guys, gravitation chapter is very important from both boards as well as entrance point of view. Newton's law of gravitation. Newton's law of gravitation. Guys, Newton's law of gravitation is also known as universal gravitational law. I will explain why is that. Universal gravitational law. Guys, the statement for Newton's law of gravitation is every body in the universe attracts every other body with a force whose value or whose magnitude is proportional to the product of their masses, and it is inversely proportional to the square of the distance between their centers. अब ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली क्या है वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। अब स्टेटमेंट क्या था, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। अब यहाँ तक हम लोग रुक जाते हैं, इसी स्टेटमेंट को हम लोग स्टेप मतलब पार्ट्स में पढ़ेंगे और एनालाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो आधा स्टेटमेंट मैंने पढ़ा उसका एग्जैक्टली मतलब क्या हुआ कि मेरे हाथ में मान लो ये एक डस्टर है और ये एक पेन है, ठीक है। अब इन दोनों का अपना एक डेफिनेट या फिर स्पेसिफिक कुछ ना कुछ मास है, मतलब ये दोनों बॉडी एक दूसरे को कुछ ना कुछ फोर्स के साथ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। मतलब ये इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स एग्जर्ट करेगा और उसका डायरेक्शन कैसा होगा, ये क्या करने वाला है, इसको अट्रैक्ट करने वाला है, मतलब टुवर्ड्स दिस डस्टर। सिमिलरली ये पेन इस डस्टर के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स एग्जर्ट करेगा और उस फोर्स के साथ वो इस डस्टर को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी टुवर्ड्स दिस पेन। सो मतलब, और ये जो स्टेटमेंट मैंने पढ़ा दैट इज यूनिवर्सल, मतलब अब यूनिवर्स में कहीं पे भी चले जाओ ये जो स्टेटमेंट है या फिर ये जो लॉ है वो वैलिड रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ अर्थ के ऊपर वैलिड है, चाहे आप स्पेस में चले जाओ या फिर किसी दूसरे प्लैनेट पे चले जाओ, वहाँ पे भी अगर कोई दो बॉडीज़ हैं उनके भी और उनका अपना एक डेफिनेट मास है तो उनके बीच में क्या होगा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा। दोनों बॉडीज़ एक दूसरे को कुछ एक डेफिनेट फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब मैं दो पॉइंट मास मैं कंसिडर करूँगा। This is M1 and this is M2. Here we have considered 2 point masses having mass M1 and M2 and they are separated by r distance. And according to Newton's law of gravitation, the gravitational force between point mass M1 and M2 is F is directly proportional
to the product of their masses. So m1 into m2, and it is inversely proportional to the square of the distance between their centers. अब यहाँ पे distance between this two point masses क्या है, r है. So f is inversely proportional to r square of the distance between their centers. ठीक है. Now अब ये दोनों स्टेटमेंट को अब मैं कंबाइन करता हूँ. So we get f is directly proportional to m1 m2 by r square. अब ये है एक प्रोपोर्शनैलिटी साइन. जब हम लोग इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करेंगे तब हमें एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा. सो वी विल गेट आवर फाइनल फॉर्मूला एज f इज इक्वल्स टू g m1 m2 by r square. So this is our final formula that we will be using for solving numericals. f is equals to g m1 m2 by r square. f क्या represent कर रहा है? f represents gravitational force between these two point masses m1 and m2. अब this is force, so obviously this will be in Newton. So ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन. This is m1 m2 masses है तो ऑब्वियसली ये किस में होगा? kgs. एंड ये डिस्टेंस है तो ऑब्वियसली इट विल बी इन मीटर्स. ठीक है. g इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल it is known as universal gravitational constant, and the value of g is 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. अब ये जो वैल्यू है वो एसआई सिस्टम में दी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. अब ये सबसे पहले तो ये यूनिट कहाँ से आया यहाँ पे चेक कर लेना. हमें किसका यूनिट फाइंड आउट करना है? जी का. सो सारे टर्म्स को यहाँ पे लेके आना. ऑलरेडी फोर्स है तो फोर्स किस में होगा? न्यूटन. ये जो आर स्क्वायर है डिनोमिनेटर में वो यहाँ पे न्यूमरेटर में चला जाएगा. सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, और ये जो केजी स्क्वायर है m1 इंटू m2, ये जो केजी स्क्वायर है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा. सो फाइनल यूनिट क्या रहेगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ठीक है. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. नेक्स्ट, बट सपोज अगर मुझे ऐसा सिस्टम में नहीं बल्कि मुझे सीजीएस सिस्टम में अगर इसका यूनिट चाहिए, उसकी वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा वैल्यू? हम लोग कन्वर्ट करके देख लेते हैं. सो पहले मैं ऐसा ये वैल्यू एज इट इज़ लिख देता हूँ. 6.67 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 11. अब कन्वर्जन फैक्टर बाद में देखते हैं, पहले सीजीएस यूनिट की बात करते हैं. न्यूटन का सीजीएस यूनिट क्या होता है? डाइन. एंड 1 न्यूटन इज 10 रेज़ टू 5 डाइन. सो पहले डाइन लिख देता हूँ. डाइन मीटर का होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर. अब कन्वर्जन फैक्टर 1 न्यूटन इज 10 रेज़ टू 5 डाइन. 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर. सो जब मैं मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा, सो आई हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 10 रेज़ टू 4 अपॉन, ये केजी है और हमें किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम में. सो 1 kg इज 1000 ग्राम. सो 1 kg स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 रेज़ टू 6. अब ये यहाँ पे देखना, 10 रेज़ टू 5 इंटू 10 रेज़ टू 4 कितना हो जाएगा? 10 रेज़ टू 9 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 10 रेज़ टू 6 है. सो 10 रेज़ टू 9 माइनस ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 10 रेज़ टू 6 क्या हो जाएगा? 10 रेज़ टू 3.
सो हमें ये जो SI सिस्टम में वैल्यू है उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻³ से। सो 10⁻⁻11 ऑलरेडी है, 10⁻⁻11 ऑलरेडी है। जब मैं मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ करूँगा तो फाइनल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, 10⁻⁻8। सो हमें फाइनल वैल्यू मिलेगी जी की 6.67 इंटू 10⁻⁻8 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ये रहा इसका CGS वैल्यू। जी को बोला गया है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब इसकी भी वैल्यू कांस्टेंट है चाहे आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, ये इसका इंटरप्रिटेशन होता है। सो अगर मान लो आप अर्थ के ऊपर आपके बॉडी का वेट है 900 न्यूटन, और अगर आपको मान लो किसी दूसरे प्लैनेट पे भेज दिया, मून के ऊपर या फिर किसी दूसरे प्लैनेट पे, तो वहाँ पे आपके बॉडी का वेट अगर निकालते समय आप जो जी की वैल्यू लेंगे, जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो दूसरे किसी प्लैनेट पे या फिर स्पेस में भी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ही होगी। ये इसका मतलब है, इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आप यूनिवर्स में कहीं पे भी चले जाओ, इसकी जो वैल्यू होगी जी की वैल्यू विल नॉट चेंज। क्लियर हुआ ये, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों बोला गया है। जी की और एक स्पेशलिटी है, मैं पहले लिख देता हूँ। J is independent of the material medium between जी क्या है, J इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल मीडियम बिटवीन द टू बॉडीज। ये क्यों बता रहा हूँ, हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में याद करना, वहाँ पे एक सेकेंड में कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला देख लेता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक से याद आया, ये जो ग्रेविटेशन और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है, ये हमें एक्चुअली कंपेयर करके पढ़ना है, ठीक है। बिकॉज कुछ सिमिलैरिटी है, कुछ डिफरेंसेस है, और जब आप ये दोनों चैप्टर को कंपेयर करके पढ़ोगे ना तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। अब देखते हैं कूलम्ब्स लॉ आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। कूलम्ब्स लॉ कहाँ पे लिखो, यहाँ पे देखो। कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल्स टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 by R square। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। अब इसको और ये वाले फॉर्मूला को ऑब्जर्व करना, ये ब्लैक, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का, ठीक है। अच्छे से ऑब्जर्व करना। यहाँ पे देखना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कूलम्ब फोर्स, या फिर आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो भी, ठीक है। यहाँ पे F इज इक्वल्स टू, ये है G, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और यहाँ पे ये पूरा 1/4π एप्सिलॉन नॉट K, ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पॉइंट मासेस के बारे में बात कर रहे हैं, M1 M2, एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, ठीक है। R क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, सेपरेशन बिटवीन टू पॉइंट मासेस। सिमिलरली यहाँ पे R क्या रिप्रेजेंट करता है, सेपरेशन बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्जेस, ठीक है। अब सिमिलैरिटी देख रहे हो, ठीक है। अब ये जो G है, ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब आप मटेरियल मीडियम इन दो पेन्स या फिर दो जो बॉडीज आप कंसिडर कर रहे हो, उन दो बॉडीज के बीच का जो सराउंडिंग मीडियम होगा, वो अगर आप चेंज भी करते हो तो भी वैल्यू ऑफ G विल नॉट चेंज, ठीक है। बट यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में ये जो 1/4π एप्सिलॉन नॉट है, 1/4π एप्सिलॉन नॉट है, उसकी वैल्यू तो एक कांस्टेंट है, दैट इज 9 इंटू 10⁻⁹। बट ये जो K है, वो K क्या है, K इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, जो कि मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है।
मतलब ये जो दो पॉइंट चार्जेस जहाँ पे रखे हुए हैं उसके उनके सराउंडिंग में जो भी मीडियम होगा उसके ऊपर वो के डिपेंड करता है। मान लो सपोज पहले दो पॉइंट चार्जेस मान लो पहले एयर में रखे थे, फ्री एयर या फिर फ्री स्पेस और वैक्यूम। सो के की वैल्यू उस केस में 1 होती है। बट जैसे ही वो दो पॉइंट चार्जेस के बीच का अगर मैं मीडियम चेंज कर देता हूँ, मान लो वो मीडियम में वाटर कर देता हूँ, तो के की वैल्यू 1 नहीं रहती, वो चेंज हो जाती है। के फॉर वाटर इज 81। सो के डज डिपेंड ऑन द मटेरियल मीडियम बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस। बट यहाँ पे क्या है, जी क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल मीडियम बिटवीन द टू बॉडीज। तो मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन दोनों को कंपेयर करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कुछ सिमिलैरिटीज़ है, कुछ डिफरेंसेस है, हमें दोनों याद रखने हैं। क्लियर हुआ? ये क्यों बताया वो समझा? क्लियर? अंडरस्टूड? नेक्स्ट पॉइंट इज जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज independent of the nature and size of the bodies. जो जी है, वैल्यू ऑफ जी, वो ये दो पेन या फिर जिन दो बॉडीज़ के बीच में आपको ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है, वो दो बॉडीज़ कितने साइज़ के हैं, छोटी है मोटी है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते। चाहे वो छोटे हो चाहे वो मोटे हो, उनका नेचर कुछ भी हो, वैल्यू ऑफ जी विल नॉट चेंज, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। बहुत कमज़ोर, बहुत दुर्बल फोर्स है ये। अब ऐसा क्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। पहले हम लोग पॉइंट लिख लेते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। is the weakest force in it is the weakest force in nature। मतलब आपने ऑलरेडी फोर्स चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। सो आपको ऑलरेडी फंडामेंटल फोर्स नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। उन चारों में से जो सबसे वीक फोर्स है, जो सबसे वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसके पीछे रीज़न क्या है वो देखते हैं। अज्यूम करना आपके पास दो बॉडीज़ है, ठीक है, और उनका हर एक का मास है मान लो 100 kg। सो 100 × 100 कितना हो जाएगा? 10⁻⁴ हो जाएगा। ये न्यूमरेटर कितना बना है फिलहाल? 10⁻⁴। और उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, अज्यूम टेक इट एज 1 मीटर, ठीक है। सो वो 1 मीटर मान लिया। सो ये पूरा, अब ये m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये पूरा ये रेशो का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10⁻⁴। तो एक बड़ी वैल्यू, एक सिग्निफिकेंट वैल्यू आ रही है। बट जब आप इसी वैल्यू को 10⁻⁴ को जब आप g से मल्टीप्लाई कर दोगे 6.67 × 10⁻⁻11, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10⁻⁻11 मतलब 0 पॉइंट ऐसे 0 ऐसे 11 0 करने के बाद आपको वो इमेजिन करना वो वैल्यू कितना छोटा होगा। इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। ये जो g की वैल्यू है, जब आप g के वैल्यू से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो ना, तो वो जो फाइनल आउटपुट होगा, जो फाइनल रिजल्ट होगा ना, वो बहुत ही छोटा हो जाता है। इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। मेरा अपना एक डेफिनेट मास है, मेरे पीछे वाइट बोर्ड है, ठीक है, उसका भी अपना कुछ डेफिनेट मास होगा, एंड वी आर सेपरेटेड बाय ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे बीच में भी कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स है तो मेरे आइदर ये बोर्ड मेरी तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए या फिर मैं इस बोर्ड की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए। बट ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, डेफिनेटली ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, बट वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है।
बिकॉज उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है ना। बट अगर मान लो आप अर्थ और आप खुद का एग्जांपल लेना, आप जो वेट जो कैलकुलेट करते हो वो वेट वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब आपके केस में वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव क्यों हो जाता है, बिकॉज जो दूसरी बॉडी है, हमारा तो वेट, हमारा तो जो मास है वो बहुत कम है, बट जो दूसरी बॉडी जो अर्थ है उसका मास क्या है, ह्यूज है। तो पहले ये पॉइंट क्लियर हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, और इसके पीछे का रीजन क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब ये फोर्स है, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होने के वजह से उसका मैग्नीट्यूड भी होगा एज वेल एज उसका डायरेक्शन भी होगा। अब इसके डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहले मैं पॉइंट लिख देता हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन joining the center gravitational force acts along the line joining the center of the two bodies. Hence, it is also known as central force. It is known as central force. अब ये जो लिखा है उसका एग्जैक्टली मतलब क्या हुआ, एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखना, ठीक है। We have 2 point masses having mass m1 and m2 and they are separated by distance r. अब इनके बीच में जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कैसे एक्ट करेगा, ये जो लाइन दिख रही है इस ये पॉइंट मासेस होने की वजह से उनका सेंटर यहाँ पे है। ठीक है, पॉइंट मासेस है तो ऑब्वियसली उनका जो वॉल्यूम होगा वो नेग्लिजिबल होगा। अब इनके बीच में, इन दोनों के बीच में जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है उसका डायरेक्शन कैसा होगा, अलोंग द लाइन। यहाँ पे क्या लिखा है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज। तो ये जो लाइन है वो क्या कर रही है, इन दो पॉइंट मासेस के सेंटर्स को कनेक्ट कर रही है। तो जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो इस लाइन के अलोंग एक्ट करेगा। सो अब देखते हैं, यहाँ पे देखो m1 m2 के ऊपर जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट कर रहा है वो कैसे, और सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे होता है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और बट पहले इतना तो पता चला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कैसे एक्ट करने वाला है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू पार्टिकल्स या फिर टू बॉडीज। ठीक है, हेंस इट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल फोर्स। अब इसको और दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करके देखते हैं। अज्यूम करना बीच में ये सन है और ये अर्थ का ऑर्बिट है। ठीक है, यहाँ पे अर्थ है, अर्थ इस ऑर्बिट में अराउंड द सन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, अब अर्थ एक बॉडी हुआ, सन एक बॉडी हुआ, इनके बीच देन दे आर सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस। तो इनके बीच में क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करेगा। अब वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसे एक्ट करेगा, पहले क्या करना है, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। इन दोनों बॉडीज़ को, अर्थ और सन का जो सेंटर है उनको कनेक्ट करने वाली एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, और अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो इस लाइन के अलोंग एक्ट करेगा। ठीक है, ऐसे पहले अर्थ और सन यहाँ पे होगा तो इस लाइन के अलोंग एक्ट करेगा, जैसे अर्थ यहाँ पे आ जाएगा तो इस लाइन के अलोंग एक्ट करेगा, ऐसे ऐसे होता जाएगा। Hence it is known as a central force. Gravitational force is always attractive in nature. मतलब अब ये पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है, मैग्नेटिज्म पढ़ा है, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस थे वो कैसे थे, अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव इन नेचर थे। बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा दैट विल ऑलवेज इन अट्रैक्टिव इन नेचर। मतलब अगर मैं बोलता हूँ ये दो पेन के बीच में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है, डेफिनेटली है, तो ये पेन इस पेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा,
सिमिलरली ये पेन इस पेन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो मैं लिख देता हूं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो हमेशा पैर में एग्जिस्ट करता है। पैर में एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हुआ, m1 m2 के ऊपर जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट कर रहा है वो कैसे एग्जर्ट करेगा, m1 m2 के ऊपर जो ग्रेविटेशनल पुल या फिर फोर्स एग्जर्ट करेगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा, टूवर्ड्स m1 ना, बिकॉज m1 m2 को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। सिमिलरली m2 m1 को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है, हमेशा इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होते हैं, ठीक है। इसीलिए ये जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलो करता है। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख लेता हूं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस and in accordance with Newton's third law of motion. And it is in accordance with Newton's third law. अब हम लोग एग्जैक्टली इसको लोकेट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखना, ये 3 पॉइंट अच्छे से याद रखना। पहला तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू पार्टिकल्स। मतलब इन दोनों के बीच में जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कैसे एक्ट करेगा, इस लाइन के अलोंग एक्ट करेगा, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, दूसरा पॉइंट वहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। मतलब जब मैं m1 m2 के ऊपर जो भी फोर्स एग्जर्ट कर रहा होगा उसका अगर मुझे डायरेक्शन बताना होगा वो किस तरफ होना चाहिए, m2 की तरफ कि m1 की तरफ, सिंस इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। अट्रैक्टिव मतलब m1 m2 को अपनी तरफ खींच रहा है मतलब जो फोर्स होगा, जो डायरेक्शन होगा वो कैसे एक्ट करेगा, टूवर्ड्स m1। सिमिलरली m2 m1 के ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है उसका डायरेक्शन कैसा होगा, टूवर्ड्स m2। सो हम लोग अभी डायरेक्शन दिखा देते हैं। m2 m1 के ऊपर जो भी फोर्स एग्जर्ट कर रहा है उसका डायरेक्शन कैसा होगा, ये F12, और m1 m2 के ऊपर जो भी फोर्स एग्जर्ट कर रहा है उसका डायरेक्शन कैसा होगा, टूवर्ड्स m1, वो हो जाएगा F21। अब ये F12 और F21 है क्या, F12 क्या है, फोर्स exerted by point mass m2 on m1, और F21 क्या है, फोर्स या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स exerted by point mass m1 on m2। क्लियर हुआ। अब ये डायरेक्शन और ये समझा। इसके पहले एक एग्जांपल लिया था, सन और अर्थ। अब ये लाइन होगा, अर्थ सन के ऊपर जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करेगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा, ऐसे, और सन अर्थ के ऊपर जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करेगा उसका डायरेक्शन होगा टूवर्ड्स द सन। क्लियर हुआ। ये जो एग्जांपल है वो मैं बार बार क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज इससे हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तब आपको पता चलेगा ये सेंट्रीपिटल फोर्स रिप्रेजेंट करेगा, या फिर देखते हैं हम लोग कैसे क्या करना है। मैंने एक हिंट दे दिया, यही आपका आगे जाके सेंट्रीपिटल फोर्स बनने वाला है, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Gravitational force is independent
ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल मीडियम बिटवीन द टू पॉइंट मासेस। अब इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है वो देख लेते हैं। मेरे हाथ में दो ये पेन है, ठीक है, और उनका अपना कुछ डेफिनेट मास है। मान लो उनका मास है 10 ग्राम, सेम मान लो, और एंड दे आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1 मीटर। अब इनके बीच में जो भी सराउंडिंग मीडियम है वो फिलहाल क्या है, एयर है। तो जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होगी वो अज्यूम करना एफ है, ठीक है। जब इन्हीं दो पॉइंट मास, इन्हीं दो पेन्स को जब मैं किसी दूसरे मीडियम में रख देता हूँ, मान लो वाटर, और सेम सेपरेशन के साथ 1 मीटर डिस्टेंस से, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसकी भी वैल्यू एफ ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। बिकॉज अब यहाँ पे देखना, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल मीडियम बिटवीन द टू बॉडीज। फोर्स के ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के फॉर्मूला को अच्छे से ऑब्जर्व करना। F इज इक्वल्स टू m1 m2 जो है पॉइंट मासेस हैं, वो आप मीडियम चेंज करो उसकी तो वैल्यू सेम ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, m1 m2 सेम है। हमने जो डिस्टेंस है, ये दो पेन्स के बीच में जो भी डिस्टेंस था वो दोनों केस में हम लोग ने सेम रखा है 1 मीटर, ठीक है। और ये जो g है वो तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इन दो पेन्स को आप कहीं पे रखो, कहीं पे भी लेके चले जाओ, अर्थ पे रखो, वाटर में अर्थ पे रखो, या फिर किसी दूसरे प्लैनेट पे लेके जाओ, स्पेस में रखो, वैल्यू ऑफ g विल रिमेन सेम। तो दोनों के केस, दोनों को कंपेयर करके जो फाइनल आउटपुट होगा f, जो वैल्यू ऑफ f होगी वो क्या होगी, दोनों केस में सेम होगी। मतलब अगर इन दो पेन्स के बीच का जो सराउंडिंग मीडियम होगा वो अगर मैं चेंज करता हूँ तो भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा दोनों पेन्स के बीच में वो क्या होगा, सेम होगा। अब ऐसा बोलने की रीज़न क्या है, बिकॉज आप अपने इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस पढ़े हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स के केस में ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला लिखा था बट रफ कर दिया, यहाँ पे देखना, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कूलम फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। जैसे इन दो पॉइंट चार्जेस जहाँ पे रखे हुए हैं, अगर उनके बीच का जो मीडियम है अगर हम लोग चेंज कर देते हैं, तो मान लो पहले वो दो चार्जेस एयर में रखे हुए थे, तो के फॉर एयर क्या है, 1 है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी एफ। बट जैसे इन दो पॉइंट चार्जेस के बीच का आप अगर मीडियम चेंज करते हो, मान लो एयर की जगह आपने वाटर कंसिडर किया, तो के फॉर वाटर क्या होता है, 81। तो जैसे जैसे मीडियम चेंज हो रहा है ना दो पॉइंट चार्जेस के बीच का, वैसे वैसे इस के की वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और जैसे इस के की वैल्यू चेंज होगी, इस फोर्स की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। मतलब इलेक्ट्रिक जो फोर्स है या फिर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और जो मैग्नेटिक फोर्स है, वो दो ऑब्जेक्ट्स जहाँ पे रखे हुए हैं उनके बीच के मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। बट ये ग्रेविटेशन के साथ नहीं होता। ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो दो बॉडीज जहाँ पे रखे हुए हैं उनके बीच के मीडियम के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। ये जो पॉइंट बोल रहा हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज जो AIPMT एग्ज़ाम था उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन था। उन्होंने क्या पूछा था, कोई भी दो बॉडीज़ दी थी और उनके बीच का बोला था सेपरेशन की कुछ वैल्यू है, और उनके बीच का मीडियम दिया था कुछ पहले एयर, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वैल्यू दी थी एफ। और पूछा जब इन्हीं दो बॉडीज़ के बीच में अगर मान लो मैं कुछ ऑयल डाल देता हूँ हैविंग सम स्पेसिफिक ग्रेविटी, उन्होंने स्पेसिफिक ग्रेविटी दी थी 0.8 1.7 समथिंग, तो जैसे ही और पूछा था ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी, और 4 ऑप्शन दिए थे, एफ दिया था, F/2 3F, ऐसे कुछ कुछ ऑप्शन दिए थे। तो वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या था, एफ। बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स आप वहाँ पे ऑयल डाल दो या फिर कोई भी दूसरा मीडियम डाल दो, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये पॉइंट हमेशा याद रखना। क्लियर हुआ, समझा? नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। अब ये कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या हुआ, देखो ये एक्चुअली ये डेफिनेशन आपने ऑलरेडी फोर्थ चैप्टर में स्टडी किया होगा या फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में स्टडी किया होगा। देखो
अगर मैं कोई भी फोर्स का अगर मैं वर्क डन निकालने जाता हूँ, ठीक है, कुछ एक सिस्टम दिया आपको और आपको कुछ फोर्सेस के बारे में बात हो रही है और वर्क डन निकालना है। अगर वो जो वर्क डन है, इफ दैट वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम, तो उस केस में जो फोर्स होगा उस फोर्स को बोला जाता है कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है, बिकॉज वो जो वर्क डन है वो पाथ सिस्टम फॉलो करती है, उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। ऐसे फोर्स को बोला जाता है कंजर्वेटिव फोर्स। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ये हमेशा याद रखना। ये पॉइंट का सिग्निफिकेंस है ना, वो अभी नहीं पता चलेगा, बट जो अपकमिंग लेक्चर होगा ना, तो हम लोग एक टॉपिक लेने वाला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो वहाँ पे ये जो पॉइंट है ना वो बहुत यूजफुल रहेगा, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स के बीच में कुछ ना कुछ एक रिलेशन है, तो वो हम लोग यूज़ करने वाले हैं। बट फिलहाल के लिए ये पॉइंट क्या याद रखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। एंड उसके पीछे रीज़न क्या है, जो भी वर्क डन होता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा बाकी है, जो फॉर्मूला है ना F इज इक्वल्स टू जी m1m2/r², इस फॉर्मूला का एक लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये जो लिमिटेशन है वो क्या है, ये जो फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू g m1m2/r², ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ पॉइंट मासेस या फिर पार्टिकल सिस्टम के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हो। यू कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला इन केस ऑफ एक्सटेंडेड बॉडीज और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अब उसके पीछे रीज़न क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। देखो, कंसिडर करना एक रॉड है आपके पास, ठीक है, एक रॉड है जिसका मास है m, और एक दूसरा पॉइंट मास है जिसका मास है स्मॉल m। आपके पास एक रॉड है और एक पॉइंट मास है। अब रॉड क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल से बनी, मतलब बहुत सारे पार्टिकल से बनी हुई है, या फिर ये एक एक्सटेंडेड बॉडी है और ये एक पॉइंट मास है। अब जब इनके बीच में अगर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी ना, तो जब आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे तो उस फॉर्मूला में एक प्रॉब्लम आ जाएगा, और वो प्रॉब्लम होगा r, वैल्यू ऑफ r। अब ऐसा क्यों, r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू बॉडीज। अब यहाँ पे जो r है ना, इस केस में वो हम लोग एग्जैक्टली बता ही नहीं सकते कि कौन सा r कंसिडर करना है। ये भी r हो सकता है, ये भी r हो सकता है, या फिर ये भी r हो सकता है। हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि कौन सा r लेना है। सो ऐसे केस में, मतलब अगर एक्सटेंडेड बॉडी होगी या फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वाला कॉन्सेप्ट होगा ना, तो उस केस में हमें कुछ एक अलग कॉन्सेप्ट, मतलब इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो वो हम लोग उसके सम्स लेने वाला है, एक्सटेंडेड बॉडीज़ के 3 या 4 सम हम लोग लेंगे, तो तभी आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि कैसे करना है। मतलब इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो, अब इन दो पेन्स के बीच में जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ना, उसकी वैल्यू निकालते टाइम आप ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, F इज इक्वल्स टू g m1m2/r²। उसके लिए आपको इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी क्वेश्चन आता है, सर हमने लोअर स्टैंडर्ड में 9th या फिर 10th स्टैंडर्ड में हमारे बीच और अर्थ के बीच में जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते टाइम तो यही फॉर्मूला यूज़ किया था, और हम कोई पॉइंट, मतलब पॉइंट मास है नहीं, तो उस केस में आप अजम्पशन करते हो, ठीक है, उस केस में आपने अजम्पशंस किए थे, उस अजम्पशन के बेस पे आप यूज़ करते थे, ठीक है। और जो अर्थ का जो केस है ना, अर्थ हम लोग स्पेरिकल अज्यूम करते हैं, तो स्पेरिकल बॉडी के लिए एक थ्योरम होता है, आप किसी भी स्पेरिकल बॉडी को ना एज अ पॉइंट मास कंसिडर कर सकते हो, प्रोवाइडेड उसका जो भी मास होगा वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा, एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो ये थ्योरम है, आप उसको प्रूव भी कर सकते हो, उस थ्योरम के बेस पे आप ये फॉर्मूला यूज़ कर देते हैं, और कुछ अजम्पशंस के साथ, वो हम लोग देखने वाले हैं अपकमिंग लेक्चर्स में। तो पहले तो इसका लिमिटेशन समझा, ये फॉर्मूला का F इज इक्वल्स टू g m1m2/r²। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम लोग, पार्टिकल या फिर पॉइंट मासेस के केस में। अगर आपके पास अगर कोई एक एक्सटेंडेड बॉडी दी होगी, एक रॉड दिया होगा या फिर कोई और एक बॉडी, तो उनके बीच में जब आपको ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना होगा तो आपको फॉर्मूला मतलब सिमिलर है, बट आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एज इट इज़ आप ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? तो मैं ये लिमिटेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। applicable only for
point masses or particle system. And cannot be applied for extended body और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो इस लेक्चर में, ये जो पूरा लेक्चर था, उस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के से रिलेटेड हमने जो थियोरेटिकल पॉइंट्स है, जो भी बेसिक पॉइंट्स है, वो हमने कवर कर लिए हैं। अब दो चीज़ बचे हैं रिगार्डिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एक तो न्यूटन्स वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ और न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये दो जो पॉइंट्स है या फिर ये जो दो टॉपिक्स है दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।